Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. Category wrong. Zero zabar, zero zabar, zero zabar. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، پروگرام ہے زیرو زبر سیزن 6 اور آج ہمارا چوتھا مقابلہ ہے، یعنی ہمیں تلاش ہے اپنی چوتھی ٹیم کی جس نے آج کامیابی حاصل کر کے سپر 6 راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے. حسب معمول ہمارے ساتھ 3 مختلف ٹیمیں ہوں گی، 3 مختلف اسکولز ہوں گے جن کے درمیان آج مقابلہ ہوگا اور انشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت راؤنڈز ہوں گے، سوالات ہوں گے، صحیح جوابات دینے پر نمبرز ہوں گے. یہاں موجود حاضرین سے بھی انشاءاللہ سوالات ہوں گے اور ان کے صحیح جوابات پر کیا ہوگا؟ جی، انعامات ہوں گے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ جہاں آپ اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کریں گے، ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھنے میں بھی کامیابی حاصل کریں گے. اللہ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اس پروگرام کو آگے لے کر چلنے کی سعادت عطا فرمائے. آئیے آپ کو بلا تاخیر لیے چلتے ہیں اور تعارف کرواتے ہیں کہ آج کون کون سے اسکولز ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ارے واہ، دیکھیں یہ جس نے سب سے لاسٹ میں جواب دیا نا، یہی اصل جواب ہے. جب بھی ہم سے کوئی ہماری طبیعت پوچھے، حال چال پوچھے، ہاؤ آر یو، ہاؤ اباؤٹ یو، کوئی ہم سے یہ پوچھے تو ہم نے اسے کیا جواب دینا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کا شکر ہے اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا. چلیں جی، باری باری اپنا نام بھی بتائیں گے، اپنے اسکول کا نام بھی بتائیں گے اور اپنی کلاس بھی بتائیے. میرا نام سائم ہے، میں دماغ اسکول سے آیا ہوں اور میں 6B میں پڑھتا ہوں. سائم آئے ہیں دماغ اسکول سے. کیسی تیاری کر آئے ہیں سائم؟ اچھی کر کے آیا ہوں. اچھا جی، سائم بھائی اچھی کر کے آئے ہیں. نیکسٹ اسٹوڈنٹ. میرا نام عباد اللہ ہے، میں دماغ اسکول سے آیا ہوں اور میں 6B میں پڑھتا ہوں. جی، 6ٹھی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں اور دماغ اسکول کے طالب علم ہیں. جی، میرا نام غلام طاہر ہے، میں دماغ اسکول سے آیا ہوں. I study in class 6B. یو اسٹڈی ان کلاس 6. ویری گڈ، ماشاء اللہ. کیسی ہے آپ لوگوں کی تیاری؟ بہت اچھی. بہت اچھی ہے. چلیں جناب، دماغ اسکول والے اچھی تیاری کر کر آئے ہیں. پوچھ لیتے ہیں ہماری نیکسٹ اسکول سے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کیسی تیاری کر کر آئے ہیں. میرا نام محمد ایان عارف ہے، میں حسن سینٹر پبلک اسکول سے آیا ہوں اور میں کلاس 7 میں پڑھتا ہوں. چلیں جی. میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، میں کلاس 7 میں پڑھتا ہوں اور میں حسن سینٹر اسکول سے آیا ہوں. میرا نام عبدالسلام ہے، میں حسن سینٹر پبلک اسکول سے آیا ہوں. میں 7ویں جماعت میں پڑھتا ہوں اور میں تیاری بہت اچھی کر کے آیا ہوں. تیاری بھی بہت اچھی کر کے آئے ہیں. ارے واہ بھائی، آپ صرف اچھی کر کے آئے ہیں یا پوری ٹیم آپ کی اچھی تیاری کر آئی ہے؟ پوری ٹیم اچھی کر کے آئی ہے. اچھا جی، پوری ٹیم اچھی کر کے آئی ہے. چلیں جی، تیسری ٹیم سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کیسی تیاری کر آئے ہیں. My name is Muhammad Ahmed Raza and I am from Darul Madina Kurangi BHS. I study in class 7. MashaAllah, we are welcome to you at our program. Yes, next student. میرا نام محمد اسد اختر ہے، میں دارال مدینہ BHS سے آیا ہوں. میں 5 کلاس میں پڑھتا ہوں. MashaAllah. My name is Asnin Jamil and I am from Darul Madina Kurangi BHS. I study in class 7. چلیں جی، 7ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، 5ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور دارالمدینہ یاد رہے دعوت اسلامی کا بڑا ہی خوبصورت اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی برانچز قائم کر لی ہیں اور الحمدللہ دی ہمارے بچوں کی خوبصورت تربیت کا یہ بہترین اہتمام کر رہے ہیں. اللہ برکتیں عطا فرمائے. مقابلے کو شروع کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آج ہمارے مقابلے میں راؤنڈز کیا کیا ہوں گے. 6 مختلف راؤنڈز ہوں گے جن کے درمیان آج یہ مقابلہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا. پہلا راؤنڈ ہوگا اندازہ لگائیں گے، دوسرا راؤنڈ ہوگا مہمان کا سوال، تیسرا راؤنڈ ہے اسماء الحسنی
चौथा राउंड होगा आपका स्कोर हमारा हुआ 5वां राउंड है जनाब कैटेगरी राउंड, और आखिरी राउंड में होगा आमना सामना दो टीमों का, क्योंकि आखिरी राउंड है जिसका नाम है आमना सामना। तो शुरू करेंगे पहला राउंड। पहले राउंड का नाम होगा अंदाजा लगाएं। सुभान अल्लाह। पहले राउंड में बारी बारी आप तीनों टीमों से सवालात होंगे, लेकिन जवाबात देने के लिए आपको साथ ही 3 ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, ए, बी और सी। आपने करना यह है कि आपके डाइस पर रखे जो कॉइन्स हैं ये आपने दुरुस्त ऑप्शन में ये सारे के सारे कॉइन्स इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता कि ये कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, तो फिर आप ये कॉइन्स तीनों ऑप्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एक कॉइन 10 पॉइंट्स का है। सही ऑप्शन में जितने कॉइन्स आपने इस्तेमाल किए होंगे उसी हिसाब से आपके स्कोर में इजाफा कर दिया जाएगा। तो राउंड 1 का करते हैं पहला सवाल दिमाग स्कूल आपसे। देखिए आप लोगों के लिए सवाल, खवातीन में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून कौन है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन बी बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन सी बीबी रुकैया रदियल्लाहु अन्हा। जी, ए में 10 कॉइंस। ए में 10 कॉइन इस्तेमाल कर लिए हैं जी, ऐसा क्यों किया है? अगर ये ऑप्शन गलत हुआ तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा। इंशाल्लाह सही होगा। आपको ऐसा लगता है कि ये सही होगा? आपको क्या लगता है भाई गुलाम सही साहब? भाई होगा, सही होगा। सही होगा। और आपको क्या लगता है? सही होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, चलें जी दिखाइए क्या ये ऑप्शन दुरुस्त है। जी जनाब, पहले ही सवाल का जवाब 100 पॉइंट हासिल किए हैं द मार्क स्कूल। सुभान अल्लाह। बारी है हसन सेंटर पब्लिक वालों से सवाल करने की। पहले ही सवाल में इन्होंने आपको टफ टाइम दे दिया है, अब आपको बड़े ही संभल कर नंबर हासिल करने होंगे। सवाल देखिए आप लोगों के लिए दूसरा क्या है। सैयदुत ताइफा किन बुजुर्ग का लकब है? 3 ऑप्शन है जवाब के लिए। ऑप्शन ए हजरत हसन बसरी, ऑप्शन बी हजरत जुनैद बगदादी, ऑप्शन सी हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम। जी, ए में 3, बी में 3, सी में 4। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। आपका सैयदुत ताइफा लकब था। 30 पॉइंट्स हसन सेंटर पब्लिक स्कूल। बारी है दारुल मदीना वालों आपसे सवाल करने की। देखिए आप लोगों के लिए सवाल, जन्नती औरतों की सरदार कौन खातून हैं? 3 ऑप्शन हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन बी हजरत बीबी ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन सी हजरत बीबी फातिमा रदियल्लाहु अन्हा। कैटेगरी राउंड सी में 10। ऑप्शन सी में 10 कौन इस्तेमाल कर लिए हैं? जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है दिया है। 100 पॉइंट हासिल किए हैं जनाब। सुभान अल्लाह। क्या शान है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस लाडली शहजादी की। अल्लाह सैयदा खातून जन्नत का हमें सदका नसीब फरमाए। आमीन। जी, एक बारी है द मार्क स्कूल वालों से दूसरा सवाल करने की। देखिए आप लोगों के लिए सवाल, तिरमिज़ी शरीफ किस बुजुर्ग की किताब है? जवाब देने के लिए 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब निसाई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ऑप्शन बी अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, ऑप्शन सी मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। कैटेगरी राउंड जी, ए में 4, बी में 3, सी में 3। जी जनाब, दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। दुरुस्त ऑप्शन बी अबू ईसा मोहम्मद बिन ईसा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि। 30 पॉइंट्स द मार्क स्कूल। दूसरा सवाल है हसन सेंटर पब्लिक वालों आपसे। देखिए आप लोगों के लिए सवाल, किस जाते पाक के नामों को अस्माउल हुस्ना कहा जाता है? 3 ऑप्शंस हैं जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए अंबिया इकराम, ऑप्शन बी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन सी अल्लाह पाक।
12 सेकंड्स के दरमियान जवाब दीजिए जनाब। Category round. Zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. ऑप्शन सी 10 coins. ऑप्शन सी में 10 पॉइंट इस्तेमाल करनी है आपने। जी देखते हैं आपका ये फैसला कितने पॉइंट्स दिलवाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है दिया है। सुभान अल्लाह। तीनों टीमें बराबर बराबर मुकाबले में शामिल हैं जनाब, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। देखिए आप लोगों के लिए दूसरा सवाल, अल्लाह पाक ने सबसे पहले किस नबी के नूर को पैदा फरमाया? 3 ऑप्शन है जवाब देने के लिए। ऑप्शन ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Zero zabar, zero zabar, zero zabar. जी सी में 10। ऑप्शन सी में 10 को इस्तेमाल किए हैं। जी दिखाइए दुरुस्त ऑप्शन क्या है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है दिया है। क्या शान है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए तो हम कहते हैं नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो नूर कैसा छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। चार जानिब हम दिए घी के जलाते जाएंगे, चार जानिब हम दिए घी के जलाते जाएंगे, घर तो घर सारे महल्ले को सजाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो नूर कैसा छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो सवालात हमारी टीम से हो गए हैं। क्या हमारी ऑडियंस सवाल का जवाब देगी? चलें जी ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं और ऑडियंस से सवाल लेते हैं। देखते हैं हमारी ऑडियंस कैसी तैयारी करके आई है। कौन जवाब देगा? राइट साइड वालों ने आवाज निकाली है, आप लोगों ने नहीं निकालनी? आप लोगों ने जवाब नहीं देना? लेफ्ट साइड वाले देंगे? चलिए जी दूसरा सवाल फिर आपसे लेते हैं। जरा यहाँ से मजबूत आवाज आई है तो पहले इनसे जरा सवाल ले लेते हैं। अच्छा जी ये बताइए, 2 मस्जिदें ऐसी हैं जो बड़ी मशहूर भी हैं और बड़ी मुकर्रम भी है, जिसको मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी कहा जाता है। एक और मस्जिद है कि जिसमें एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नेकियों के बराबर है। उसका नाम कौन बताएगा? उस मस्जिद का नाम? मस्जिद अल-अक्सा। मस्जिद अक्सा। जवाब दुरुस्त है दिया है भाई। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। आपको हम तोहफे में देंगे ये बड़ी ही खूबसूरत कहानियों की सीरीज है। मकतबतुल मदीना ने इसे शाया किया है। खूबसूरत कलर्स और खूबसूरत ग्राफिक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है और नाम भी बड़ा ही यूनिक है, लालची कबूतर। और ये लालची कबूतर कौन था, क्या था? अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब कर सकते हैं। और अगर आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर देना चाहते हैं तो भी आप घर बैठे नीचे दिखाए जाने वाले नंबर्स पर राब्ता करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको तोहफे में देंगे जनाब, सारे मिलकर। चलें जी ये बताइए, हजर अस्वद क्या चीज है? जन्नती पत्थर। क्या जवाब दुरुस्त दिया इन्होंने? जी जनाब जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, जन्नती पत्थर है जनाब। क्या तोहफे में देंगे सुमन भाई? रहनुमाई करने वाला भेड़िया। ये भी बच्चों की कहानी की बड़ी खूबसूरत सीरीज का एक हिस्सा है, रहनुमाई करने वाला भेड़िया। इसे भी आप मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। जी ये तोहफे में दिया जाएगा जनाब। अच्छा, किस इस्लामी महीने में मुसलमान एतकाफ करते हैं? रमजान। रमजान अल मुबारक के महीने में मुसलमान सुन्नत एतकाफ करते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है। चले जी तोहफे लेकर आइए, जरा 2-4 तोहफे एक साथ लेकर आ जाइए।
اور سوال کا یہاں پر جواب دیں گے؟ اچھا جی یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ یہ کس شہر میں ہے؟ مکے میں. مکہ شریف میں. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی یہ بہت خوبصورت رسالہ نور والا چہرہ یہ ہم اپنے بیٹے کو تحفے میں دیں گے. ایک اور سوال کا جواب, یہ دنیا کا پہلا پہاڑ جو بتایا مکے میں ہے اس کا نام کون بتائے گا؟ اس پہلے پہاڑ کا نام, دنیا کے پہلے پہاڑ کا نام. احد. نہیں جناب, بالکل نہیں. اچھا جی یہاں بتائیں گے جی؟ جبل احد. نہیں بالکل نہیں. جبل نور. بالکل بھی نہیں. احد پہاڑ تو مدینہ شریف میں ہے بھائی. غار ہیرا. ارے نہیں یہ ہے تو مکے میں لیکن یہ پہلا پہاڑ نہیں ہے. کوہ طور. ارے دنیا کا پہلا پہاڑ جو صحیح جواب دے گا اس کے 2 تحفے دوں گا. غار سور. بالکل نہیں. جبل ابی قبیس. جبل ابی قبیس. جواب درست دے دیا ہے جناب. یہ دنیا کا پہلا پہاڑ ہے اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تھا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو اسر کیا, گئے ہوئے دل کو اسر کیا. یہ تابوت تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات, تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. آج کے ہمارے پروگرام میں ہم نے یہ سیکھا اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں. وجہ تخلیق کائنات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ the reason of creation. کس کو کہتے ہیں؟ ریزن آف کریشن. ہم نے یہ جو سیٹ بنایا ہوا ہے, یہ پروگرام ہو رہا ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ ایک مقابلہ ہے. کیا ہے؟ ایک مقابلہ ہے نا. اس مقابلے کو کرنے کے لیے یہ پورا سیٹ کریٹ کیا گیا ہے. آج کا یہ پروگرام کریٹ کیا گیا ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ مقابلہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں, یہ ریزن ہے اس پوری کائنات کے بننے کے. یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا کی. ہمیں یہ ناز ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے پیارے نبی, آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں میں شامل فرمایا ہے. جی جناب, بڑھیں گے, مقابلے کو آگے بڑھائیں گے اور تیسرا سوال کریں گے ہم اپنی مارک ٹیم سے. دیکھتے ہیں آپ کے لیے تیسرا سوال کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کون سا کافر تھا؟ 3 آپشنز ہیں جواب دینے کے لیے. آپشن اے فرعون, آپشن بی ابو جہل, آپشن سی نمرود. جی اے میں 10 پوائنٹس. جی جناب, آپشن اے میں 10 کون استعمال کیے ہیں؟ دیکھتے ہیں آپ کا جواب کتنا درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. پورے کے پورے 100 پوائنٹ حاصل کیے ہیں دمارک اسکول. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, زبردست پریپریشن نظر آ رہی ہے. حسن سینٹر پبلک والو, آخری سوال راؤنڈ 1 کا آپ سے ہوگا. دیکھیے آپ لوگوں کے لیے سوال. سب سے پہلی ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں کون ہیں؟ 3 آپشنز ہیں. آپشن اے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا, آپشن بی حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا, آپشن سی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. کوئنز کا استعمال کیجئے. جی سی میں 10 کوئن استعمال کر لیے ہیں. جی جناب دکھائیے, کیا ان کا یہ فیصلہ پورے نمبر دلوائے گا یا کوئی نمبر نہیں ملے گا؟ پورے کے پورے 100 نمبر حاصل کیے ہیں جناب. سبحان
क्या बात है जनाब, आज की टीम तो बड़ी अच्छी प्रिपरेशन कर आई है। आखिरी सवाल होगा दारुल मदीना वालों आपसे। देखिए आप लोगों के लिए आखिरी सवाल, वो कौन से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनका लक़ब ज़ुन्नून है? 3 ऑप्शन है जवाब के लिए। ऑप्शन ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। कॉइंस का इस्तेमाल कीजिए। Zero zabar, zero zabar, zero zabar, सी में 10। ये भाई पहले से आप लोगों ने कहीं हमारा सिलेबस देख तो नहीं लिया हैं? क्यू कार्ड आपको मिल तो नहीं गए थे पहले? सारे ही बच्चे सही ऑप्शन में पूरे पूरे कॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं। दिखाइए जनाब, क्या दारुल मदीना भी पूरे नंबर हासिल करती है? जी सही ऑप्शन का इस्तेमाल किया है। 100 पॉइंट हासिल किए हैं दारुल मदीना ने। पहला राउंड कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं पहले राउंड का स्कोर किस टीम ने क्या बनाया। दिमाग स्कूल ने हासिल किए हैं 230 पॉइंट्स। हसन सेंटर ने हासिल किए हैं 230 पॉइंट्स और दारुल मदीना ने हासिल किए हैं 300 पॉइंट्स। क्या बात है जनाब, आई थिंक अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम हमारी दारुल मदीना की टीम है। लेकिन ज्यादा नंबर वालों को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और कम नंबर वालों को उदास नहीं होना चाहिए, दिल छोटा नहीं करना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड्स मौजूद हैं और हमारा अगला राउंड बड़ा ही खूबसूरत राउंड है। राउंड का नाम है मेहमान का सवाल। मेहमान का सवाल। जी जनाब, दूसरे राउंड में हमारे मेहमान आपसे सवाल करेंगे। हम आपको बारी बारी मेहमानों की तस्वीर स्क्रीन पर स्क्रॉल करती हुई दिखाएंगे। आप जैसे ही मदीना कहेंगे मेहमान की तस्वीर को स्टॉप किया जाएगा। जो मेहमान स्क्रीन पर होंगे आपसे सवाल करेंगे। सही जवाब देने पर आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा और गलत जवाब 10 पॉइंट्स आपके स्कोर से माइनस कर जाएगा। कोशिश कीजिएगा कि ध्यान से गौर से आप सवाल सुने और सही जवाब दें। जी पहला सवाल होगा दिमाग स्कूल से। दिखाइए मेहमानों की तस्वीर। मदीना। अरे वाह, खलीफा अमीर अहले सुन्नत हाजी उबैद रजा अत्तारी सवाल करेंगे। जी हाजी साहब, बच्चों से क्या सवाल करेंगे? प्यारे बच्चों, आज मेरा आपकी टीम से ये सवाल है कि क़यामत का दिन कितने हजार साल के बराबर होगा? 50,000 साल के बराबर होगा। 50,000 साल के बराबर होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये दिन कहने में बड़ा ही आसान, कहने में बड़ा ही छोटा वर्ड लगता है, 50,000 साल का दिन, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो ये 50,000 साल का दिन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस दिन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका नसीब फरमाए। जी बारी है हसन सेंटर पब्लिक स्कूल वालों से दूसरा सवाल करने की। सवाल करेंगे हमारे मेहमान मदीना। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी भाई सवाल करेंगे। जी हाजी साहब, बच्चों से क्या सवाल करेंगे आप? प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि वैसे तो हम जब मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो कहते हैं पीछे इस इमाम के, मगर क्या आप बताएंगे कि फिक्र में हम किस इमाम को फॉलो करते हैं? इमाम आजम अबू हनीफा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। दिखाइए मेहमानाने गिरामी। मदीना। फुजैल शाह साहब सवाल करेंगे। जी शाह साहब सवाल कीजिए। हदीस पाक के मुताबिक किन से मोहब्बत करने वाले का ईमान कामिल हो जाता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। हमारे प्यारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब ये भी दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। एक एक और सवाल हो जाए। जी। चलें जी, एक एक और सवाल हमारे मेहमान करेंगे। मदीना। जी वकार शाह साहब सवाल करेंगे दिमाग स्कूल वालों आपसे। प्यारे बच्चों, आप ये बताइए वो कौन सी नमाज है जिसके लिए 2 अजानें दी जाती हैं? अरे भाई, एक नमाज के लिए 2 अजानें, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। नमाज जुम्मा। नमाज जुमा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी अगला सवाल होगा हसन सेंटर पब्लिक स्कूल वालों से। हमारे मेहमान करेंगे मदीना। जी राशिद मदनी भाई सवाल कीजिए। बच्चों से मेरा सवाल ये है कि मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद किस मस्जिद को फजीलत हासिल है? मस्जिद अक्सा। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जी आखिरी सवाल होगा राउंड 2 का दारुल मदीना की टीम से, लेकिन सवाल करेंगे हमारे मेहमान मदीना।
अरे वाह, फुजैल शाह साहब दूसरा सवाल भी करेंगे। जी शाह साहब, क्या सवाल करेंगे इस बार बच्चों से? नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें होती हैं? 4 तकबीरें। 4 तकबीरें होती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या शान है, क्या बात है हमारी टीम की। यहाँ तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, लेकिन क्या हमारी ऑडियंस भी सवाल के जवाब देने के लिए तैयार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलें जनाब, हमारी ऑडियंस भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सोबान भाई, आप भी तोहफे लेकर तैयार हो जाएं, जल्दी से करीब आ जाएं। अच्छा जी, ये बताइए किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात से मस्जिद बनवाई? जी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। जी जनाब, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, आपको हम जो तोहफे में देंगे वो रिसाला है फिरौन का ख्वाब। अब इसने क्या ख्वाब देखा था और इसके साथ क्या हुआ था, इस रिसाले में क्या क्या है, ये जानने के लिए आप भी ये रिसाला मकतबतुल मदीना से तलब कर सकते हैं। जो मस्जिद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनवाई थी, उस मस्जिद का नाम कौन बताएगा? मस्जिद कुबा। बिल्कुल नहीं। मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। और ये मस्जिद अक्सा की क्या शान है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे तो मस्जिद अक्सा में सारे नबियों की, तमाम पिछले नबियों की आपने इमामत फरमाई थी। ये बच्चों की कहानी का सिलसिला बेवकूफ की दोस्ती, ये कहानी का रिसाला आपको हम तोहफे में देंगे। चलें जी, बढ़ेंगे, आपको दूसरे राउंड का स्कोर बोर्ड दिखाएंगे और बताएंगे कि दूसरे राउंड के बाद बच्चों का स्कोर क्या रहा। तीनों टीमों ने 20-20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में। दिमाग स्कूल का टोटल स्कोर हो गया 250 पॉइंट्स। हसन सेंटर पब्लिक स्कूल भी हमारे साथ मौजूद है, 250 पॉइंट्स। दारुल मदीना का स्कोर हो गया 320 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे तीसरे और बड़े ही इंटरेस्टिंग राउंड की, जिसका नाम है अस्माउल हुस्ना। जी नाज़रीन, मुकाबला पहुंच चुका है तीसरे राउंड में और तीसरा राउंड हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग राउंड है, क्योंकि इस राउंड में हम बच्चों को कुछ दौड़ाते भी हैं, बच्चों का आईक्यू लेवल भी चेक किया जाता है, इनकी जहानत भी चेक की जाती है और इनकी स्पीड भी चेक की जाती है। तरीक़ेकार ये होगा कि सामने बोर्ड पर अल्लाह पाक की मुकद्दस नामों की 33 तख्तियों को लगाया गया है। आपने इन नामों की ट्रांसलेशन को तलाश करना होगा जंजीरों पर हैंग की हुई 99 तख्तियों में से। याद रहे, आपने उसी तख्ती को सेलेक्ट करना होगा जो हमने आपको स्क्रिप्ट में लिखकर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसलेशन बड़े करीब करीब हैं, बहुत सिमिलर हैं, लिहाजा आपने वही तख्ती तलाश करनी है जो हमने आपको स्क्रिप्ट में लिखकर दी है। हर सही तख्ती लगाने पर आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा और गलती करने पर कोई नंबर माइनस नहीं किया जाएगा। बारी बारी एक एक टीम को हम बुलाएंगे अपनी एक्टिविटी फ्लोर पर। हर टीम के पास 90 सेकेंड्स का वक्त होगा, लेकिन हर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेगा, यानी हर स्टूडेंट 30 सेकंड अपना इस्तेमाल करके इस राउंड में अपनी टीम के स्कोर में बड़ा इजाफा कर सकता है। तो एक एक टीम को बुलाएंगे। पहले बारी है दिमाग स्कूल आपकी, आइए एक्टिविटी फ्लोर पर। दिमाग स्कूल की टीम कौन जाएगा पहले? पहले मैं जा रहा हूँ। मैं का नाम तो बता दे भाई। साइम भाई जाएंगे, उनके बाद गुलाम तहा भाई जाएंगे और तीसरे नंबर पर हमारे भाई जाएंगे इबादुल्लाह। जी, आपका 90 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। देखते हैं कितनी तख्तियां लगा पाते हैं। आप अपनी टीम की भरपूर मदद कर सकते हैं यहाँ खड़े खड़े। वाहिद का ढूंढो। 10 सेकंड्स आपके गुजर चुके हैं। 20 सेकंड्स गुजर गए हैं बेटा। लास्ट 5 सेकंड्स हैं, काउंट डाउन देंगे। 5 4 3 2 1। चलें जी, वापस आइए। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर मिसिंग वर्ड ज़ेरो ज़बर ज़ेरो कैटेगरी रॉन्ग ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर। बहुत मेहरबान। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2
1 कम बैक। आ जाइए भैया, मदद कर सकते हैं यहाँ पर, आप खड़े रहकर मदद कीजिए उनकी। ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर ज़ेरो ज़बर मिसिंग वर्ड। लास्ट 5 सेकेंड्स, काउंट डाउन दीजिए। 5 4 3 2 1। चलें जी, कम बैक। 3 तख्तियां लगाई हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये तीनों तख्तियां दुरुस्त लगी हैं। पहली तख्ती लगाई है अल हसीब, खुदाई के लायक। गलत। नहीं जनाब। अल वली, पैदा करने वाला। गलत। ये भी गलत। अल वाजिद, बहुत बख्शने वाला। गलत। अल्लाहु अकबर, ऐसा क्यों किया है? अनबिलीवेबल, एक भी नंबर तीसरे राउंड में नहीं हासिल कर सके, हालांकि बेहतरीन चांस था। आप अपनी टीम को 330 पॉइंट्स दिलवा सकते थे अगर इसकी अच्छी प्रिपरेशन करते तो। चलें जी, आप बढ़ेंगे अपने पोडियम की तरफ और हम बुलाएंगे अपनी नेक्स्ट टीम को, हसन सेंटर पब्लिक स्कूल की टीम। आइए एक्टिविटी फ्लोर पर, लेकिन याद रहे हर टीम के लिए इन अरबिक नेमों को चेंज किया जाएगा। जी, हसन सेंटर की टीम आ चुकी है एक्टिविटी फ्लोर पर। कौन जाएगा पहले? जी, मुस्तफा। मेरा नाम दूसरा है, फिर इसके बाद मैं जाऊंगा मुस्तफा के बाद। मेरा नाम मोहम्मद अयान आरिफ है, मैं तीसरे नंबर पे जाऊंगा। चलें जी, आप तीनों रेडी हैं? जी बिल्कुल। आपकी टीम का 90 सेकंड्स का टाइम शुरू होता है अब। सलाम करने में सलामती वाला जल्दी करो मुस्तफा। भाई मदद करने का कहा है, डिमोटिवेट करने का नहीं कहा। सलामती देने वाला। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलें जी, आ जाइए जल्दी जल्दी, आ जाओ। क्या बात है आपकी। अल्लाह लुत्फ़ करम करने वाला ढूंढो। रहीम का 20 सेकंड्स गुजर गए आपके। एडवान उठाओ, इधर 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 इधर, यहाँ 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 यहाँ। लास्ट 5 सेकंड्स, काउंटडाउन मिलकर देंगे। 5 4 2 1। चले जी, कब्जे में रखने वाला ढूंढो, कब्जे में रखने वाला। अल मोमिन पे रखो, अल मोमिन ब्लू कलर सबसे पहली लाइन। हाँ सही है। पैदा करने वाला ढूंढो, पैदा करने वाला। लास्ट 10 सेकंड्स हैं। इल्म वाला उठो, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलें जी, पहली तख्ती लगाई है अल मलिक, सारे जहान का मालिक। नहीं जनाब, बादशाह है, इसका माना है बादशाह। इसीलिए मैंने कहा था कि जो हमने आपको लिख कर दिया है वही आपने लगानी होगी। गलती हो गई है जनाब, 10 पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे। अल क़हार, गलबा पाने वाला, 10 पॉइंट्स। अल मुमिन, अमन देने वाला, 20 पॉइंट्स। अर रहीम, निहायत मेहरबान, ये गलती हो गई है। अर रहमान का है ये मतलब। चलें जी, कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं? जी, हसन सेंटर पब्लिक वालों ने हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। बारी है दारुल मदीना की टीम को एक्टिविटी फ्लोर पर बुलाने की, लेकिन याद रहे अरबिक नेमों की तख्तियों को चेंज करेंगे। दारुल मदीना की टीम एक्टिविटी फ्लोर पर पहुंच चुकी है। कौन जाएगा पहले? हसनैन जमील। हसनैन भाई पहले जाएंगे, आपके बाद अहमद रमजान जी। तीसरे कौन जाएंगे? मोहम्मद हसन अख्तर। आप तीनों रेडी हैं? यस। इन दोनों टीमों ने तो थोड़ी कमजोर कारकर्दगी दिखाई है। आपके क्या इरादे हैं, कितने पॉइंट्स हासिल कर सकेंगे? कोशिश करेंगे, अब जितने कोशिश तो करेंगे। चलें जी, आपकी कोशिश का टाइम शुरू होता है अब। दौड़िए, आप मदद कर सकते हैं यहां से खड़े खड़े। एक साथ इतनी सारी तख्तियां निकाल रहे हैं भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स रह गए हैं, काउंटडाउन देंगे। 5 4 3
कम बैक। zero zabar 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 missing word 20 seconds गुजर गए हैं। लास्ट 5 seconds काउंटडाउन में कर देंगे। 5 4 3 2 सही 1 चले जी। थर्ड missing word category wrong zero zabar 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 काउंटडाउन देंगे मिलकर। 5 रोकने वाला ढूंढो 4 3 2 1 चलें जी, टाइम आपका फिनिश हो गया। पढ़ेंगे हम, चेक करेंगे कितनी तख्तियां दुरुस्त लगाई हैं। अज़्ज़ाहिर हर ऐब से पाक, गलती की है जनाब। अल गनी गनी करने वाला, चलें जी, फैसला आपकी टीम का है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अल मुक़्तदिर इक़्तिदार रखने वाला 10 पॉइंट्स। अल वारिस हमेशा बाकी रहने वाला 20 पॉइंट्स। चलें जी, दारुल मदीना की टीम ने भी इस राउंड में हासिल किए हैं 20 पॉइंट्स। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं तीसरे राउंड का। द मार्क स्कूल ने तीसरे राउंड में अपने स्कोर में किसी नंबर का इजाफा नहीं किया। आपका टोटल स्कोर है 250 पॉइंट्स। हसन सेंटर स्कूल ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है अपने स्कोर में और आपका टोटल स्कोर हो गया 270 पॉइंट्स। दारुल मदीना वालों ने भी सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही इजाफा किया है, लेकिन आपका टोटल स्कोर हो गया 340 पॉइंट्स। और अब बारी है हमारे उस राउंड की कि जिसके बाद एक टीम हमारे मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएगी। याद रहे, इस राउंड में पिछला तजुर्बा ये है, जो टीम आगे है वो भी ज्यादा प्राउड फील ना करे और जो टीम पीछे है वो भी दिल छोटा ना करे, क्योंकि राउंड का तरीकेकार ही कुछ ऐसा है। और राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। सुभान अल्लाह। इस राउंड का तरीकेकार बड़ा ही डेंजरस है दूसरी टीमों के लिए, क्योंकि इस राउंड में जवाब वो टीम देगी जो बजर बजाएगी। ठीक है, हम आपके सामने सवाल करेंगे, जो टीम बजर बजाएगी वो टीम से हम जवाब लेंगे। अगर तो बजर बजाने वाली टीम ने सही जवाब दे दिया तो इसके स्कोर में 20 पॉइंट्स का इजाफा होगा, लेकिन साथ ही साथ दोनों टीमों के 10 पॉइंट्स माइनस करके ये इजाफा होगा। और अगर बजर बजाने वाली टीम ने गलती की तो उसके स्कोर से 20 पॉइंट्स माइनस करके दोनों टीमों के स्कोर में 10 पॉइंट्स प्लस कर दिए जाएंगे, क्योंकि राउंड का नाम है आपका स्कोर हमारा हुआ। आपका स्कोर हमारा हुआ। बड़े ही सोच समझकर आपने बजर बजानी है। शुरू करेंगे राउंड 4 का पहला सवाल। देखते हैं कौन पहले बजर बजाता है। जरा बजर चेक करवाइए। द मार्क स्कूल, वेरी गुड। हसन सेंट्रल, दारुल मदीना। याद रहे, हमारा बजर सिस्टम बड़ा ही अपग्रेड है। जिस टीम ने पहले बजर बजा दी 3 सेकंड तक दूसरी टीम की बजर बीप नहीं करेगी, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। शुरू करेंगे राउंड 4 का पहला सवाल। देखते हैं कौन सी टीम पहले बजर बजाती है। सूरह जिन कुरान पाक के किस पारे में है? हसन सेंट्रल 28वें पारे में। 28वें पारे में। जवाब बिल्कुल गलत दिया है जनाब। अल्लाहु अकबर। सूरह जिन कुरान पाक के 29वें पारे में है। 20 पॉइंट्स माइनस होंगे और 10 पॉइंट्स का इजाफा होगा दारुल मदीना और दमाक स्कूल के स्कोर में। सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा था कि ध्यान से आपने सवाल सुनना है और सोच समझकर बजर बजानी है। हज के कितने रुकन हैं? एक मर्तबा फिर बजर बजा दी है हसन सेंट्रल। हज के 2 रुकन है। हज के 2 रुकन है। इस बार आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। याद रहे, हज के 2 अहम तरीन रुकन हैं, मैदान अरफात में कयाम और तवाफ ज़ियारत करना। अल्लाह हमें भी ये नसीब फरमाए। आमीन। जी, बारी है तीसरे सवाल की। हज में रमी करते वक्त शैतान को हर मर्तबा कितनी कंकरियां मारी जाती हैं? द मार्क स्कूल 7। आपने कहा 7, जबकि सही जवाब है 7। जवाब दुरुस्त दे दिया है। द मार्क स्कूल ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है, लेकिन आपका ये इजाफा दोनों टीमों के 10 पॉइंट्स ले गया है। हसन सेंट्रल और दारुल मदीना के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस हुए हैं।
بڑھیں گے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. قرآن کریم میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ دار المدینہ. حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ. جواب درست دے دیا ہے. دار المدینہ کی ٹیم نے 20 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں اور یہ اضافہ دونوں ٹیموں کے 10 پوائنٹس واپس لے گیا ہے. مشہور آسمانی کتابوں کی تعداد بتائیے. حسن سینٹرل. 4. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ دمارک اسکول. محمد اور احمد. محمد اور احمد. جواب بالکل غلط دے دیا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کہتے ہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. جب آپ نے بزر بجا دی ہے تو پھر میں نے جواب آپ سے ہی لینا ہے, آپ کی ٹیم سے ہی لینا ہے. آپس میں بندہ مشورہ کر لیتا ہے, ایک دوسرے سے پوچھ لیتا ہے. اگر آپ مشورہ کر لیتے تو آپ کا جواب درست ہو جاتا. 20 پوائنٹس مائنس ہوں گے دمارک اسکول. اللہ اکبر. اور یہ مائنس پوائنٹس دونوں ٹیموں میں ڈیوائیڈ کیے جائیں گے. 10 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا حسن سینٹرل اور دار المدینہ کے اسکور میں. قرآن کریم میں کس خاتون کے نام پر پوری سورت ہے؟ حسن سینٹرل. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. فجر کی ٹوٹل کتنی رکعتیں ہوتی ہیں دار المدینہ؟ فجر کی ٹوٹل 4 رکعتیں ہوتی ہیں. فجر کی ٹوٹل 4 رکعتیں ہوتی ہیں. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی جناب. 20 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا دار المدینہ کے اسکور میں. سبحان اللہ. روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام بتائیے. دار المدینہ. اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی, بزر پر ہاتھ ہے تینوں ٹیموں کا. بہت انتہائی آسان سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. آپ نے بتانا یہ ہے جو فرشتے ہمارے نامہ اعمال لکھتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ حسن سینٹرل. کرامن کاتبین. کرامن کاتبین. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی, حسن سینٹرل پبلک اسکول نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. کئی سارے نمبر مائنس کروانے کے بعد بالآخر آخری سوال کے جواب میں نمبر حاصل کیے ہیں جناب. یہاں ہم رزلٹ اناؤنس کریں گے لیکن کیا ہماری آڈینس سوال کا جواب دے گی؟ چلیں جی, آڈینس سے کچھ سوال کے جوابات لے لیتے ہیں. صوبان بھائی آئیے ذرا کچھ کتابیں لے آئیے. اچھا جی, یہ بتائیے اس مسجد کا نام بتائیے کہ جس مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھنے والے کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. مسجد حرام. نہیں. مسجد الحرام. مسجد الاقصی. نہیں. جی. مسجد الحرام. مسجد قباء. مسجد قباء. جواب درست دے دیا ہے جناب. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے آیا اور مسجد قباء میں 2 رکعت نوافل پڑھے اللہ اسے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. چلے جی, آپ کو ہم دیں گے بڑا ہی خوبصورت بچوں کی کہانیوں کا رسالہ جھوٹا چور. ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے؟ بالکل نہیں بولنا چاہیے. اور یہ جھوٹا چور کون تھا اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ سے آپ یہ رسالہ طلب کر سکتے ہیں. چلے جی, ایک اور سوال ہو جائے. کون دے گا سوال کا جواب؟ لیفٹ سائڈ والوں کا آواز ذرا زبردست آیا ہے. اچھا, اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام فوراً سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. جواب درست دے دیا ہے. کیا تحفے میں دے رہے ہیں؟ پیارے نبیوں کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام. پیارے نبیوں کی زندگی کی سیریز حضرت آدم علیہ السلام. بڑا ہی خوبصورت رسالہ ہے جناب. ہم تحفے میں دیں گے ہمارے بیٹے کو. ویسے لگتا کیا ہے آپ کو, کون جائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دماغ اسکول. دماغ اسکول. دارالمدینہ. نہیں, کون سی ٹیم زیر ہو گئی, کون بتائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ٹیم زیر ہو گئی؟ دماغ اسکول. حسن سینٹر پبلک اسکول. دماغ اسکول. دماغ اسکول. دماغ اسکول. آپ کو ایسا لگتا ہے دماغ اسکول؟ دماغ اسکول. دماغ اسکول. جی جناب, یہاں والوں کو تو زیادہ کو لگتا ہے دماغ اسکول. کچھ حسن سینٹر بھی کہتے ہیں دماغ اسکول. دماغ اسکول. دماغ. چلیں جی, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور بورڈ. کون سی ٹیم زیر ہوئی اور کون زبر رہا. دماغ والوں نے بڑی کوشش کی ہے, بڑی بزر بجانے کی کوشش کی, لیکن بزر بجا کر نمبر نہیں لیے, مائنس کروائے ہیں. اور آپ کا مائنس اسکور رہا اس راؤنڈ میں -60. یوں آپ کا ٹوٹل اسکور بچا 190 پوائنٹس.
अल्लाहु अकबर। हसन सेंटर पब्लिक स्कूल ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन आपने इस राउंड में हासिल किए 30 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर रहा 300 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। दारुल मदीना वालों ने कई सवाल के जवाब में बजर ही नहीं बजाई, लेकिन ये बजर ना बजाना आपने अक्लमंदी की, क्योंकि अगर बजर बजाकर गलत जवाब देते तो आपके नंबर ज्यादा माइनस होते। आपने इस राउंड में जो नंबर हासिल किए हैं वो नंबर्स हैं 30 और आपका टोटल स्कोर हो गया 370 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर। दिमाग स्कूल की टीम को हमें रुखसत करना होगा। चलें जी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छी तैयारी कर कर आएंगे। आइए जनाब। चलें जी, ये सर्टिफिकेट्स भी आपके साथ जाएंगे। गुलाम तहा भाई, आप हैं बेटा? इबादुल्लाह, मोहम्मद साइम। चलें जी, ये बॉक्सेस में मौजूद तोहफे भी आपके साथ जाएंगे। आप बढ़ेंगे ऑडियंस की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम है कैटेगरी राउंड। कैटेगरी राउंड। मुकाबला 5वें राउंड में पहुंच चुका है और 5वां राउंड हमारा कैटेगरी राउंड होता है, जिसमें दोनों टीमों को सवालात के लिए कैटेगरीज चूज करनी होती हैं। अपनी मर्जी की कैटेगरी चूज करेंगे। याद रहे, हर कैटेगरी में मेरे पास 5-5 सवालात हैं और हर सवाल अलग पॉइंट्स का है। पहला सवाल होगा 10 पॉइंट्स, दूसरा 15, तीसरा 20, चौथा 25 और 5वां सवाल 30 पॉइंट्स का होगा। जितने नंबरों का आप सवाल लेंगे, सही जवाब देने पर उतने पॉइंट्स आपके होंगे और अगर आपने गलती की तो आपके स्कोर से वो पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। सोच समझकर आपने कैटेगरी का इंतखाब करना है। आप किसी भी वक्त किसी भी कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में स्विच भी कर सकते हैं। जी, शुरू करेंगे हसन सेंटर पब्लिक स्कूल से। हसन सेंटर पब्लिक स्कूल, आपके लिए देखिए कैटेगरीज क्या हैं। अंबिया इकराम, खुलफाए राशिदीन, मक्का शरीफ या मदीना शरीफ? मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये पहला सवाल है। बताइए, रोज़ा रसूल पर जो गुंबद बना हुआ है उसका कलर क्या है? ग्रीन कलर। सब्ज रंग। पहले फैसला कर लें, ग्रीन या सब्ज? सब्ज रंग। ग्रीन। सब्ज ग्रीन को ही कहते हैं जी। सब्ज ग्रीन को कहते हैं। अच्छा जी, सब्ज ग्रीन को ही कहते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं हसन सेंटर पब्लिक स्कूल ने। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। कैटेगरी आपने खुद चूज करनी है। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है, 15 पॉइंट्स का होगा। मदीना शरीफ की सबसे मुबारक और सबसे अजमत वाली जगह कौन सी है? रोज़ा रसूल। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इसीलिए तो शायर ने कहा, अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोजा है हर मका से बाला मीठे नबी का रोजा। अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोजा। अर्शे उला से आला मीठे नबी का रोजा बैगर मका से बाला मीठे नबी का रोजा। अर्शे उला से आला। अल्लाह हमें भी इस बाबरकत और मुकद्दस मकाम की जल्द हाजिरी नसीब फरमाए। जी, 15 पॉइंट्स का इजाफा किया है दारुल मदीना ने। बारी है दूसरे सवाल की। हसन सेंटर पब्लिक स्कूल कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये तीसरा सवाल है, 20 पॉइंट्स का सवाल होगा। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन जिस पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजार मुबारक मौजूद है, वहाँ सुबह शाम कितने कितने हजार फरिश्ते हाजिर होते हैं? 70 हजार। 70 हजार फरिश्ते हाजिर होते हैं। आला हजरत ने लिखा 70 हजार सुबह हैं, 70 हजार शाम, यूं बंदगी जुल्फ और रुख आठों पहर की है। और जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, क्योंकि रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। और मासूमों को है उम्र में सिर्फ एक बार। हाय हाय हाय, अल्लाह के फरिश्ते
یہ मासूम फरिश्ते हैं, ये कभी कोई गुनाह नहीं करते, अल्लाह अकबर, अल्लाह की फर्मा बरदारी में हमेशा लगे हैं, लेकिन इनको जिंदगी में सिर्फ एक बार नबी पाक के दरबार की हाजिरी का चांस दिया जाता है। और इसका रीजन उलमा ने ये लिखा कि अगर किसी को दोबारा चांस दिया जाए तो शायद अंदेशा है कि कई सारों को दोबारा मौका ना मिल सके, इतने ये तादाद में ज्यादा हैं। तो आला हजरत ने लिखा कि मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार और आसी पड़े रहे। हम गुनाहगार को सलाह क्या है, आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है, क्योंकि हमारे आका ने फरमाया कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। 20 पॉइंट्स का इजाफा किया है हसन सेंटर पब्लिक स्कूल। सुभान अल्लाह। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की। जी, कैटेगरी चूज कीजिए। अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी का ये पहला सवाल है, 10 पॉइंट्स का सवाल होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी थी? 1000 साल। 1000 साल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, हसन सेंटर कैटेगरी चूज कीजिए। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ कैटेगरी का ये चौथा सवाल है, 25 पॉइंट्स का सवाल होगा। आपने बताना ये है कि मदीना शरीफ की सबसे अजीम मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद नबी। आपने कहा मस्जिद नबी। 25 पॉइंट्स का ये सवाल था और आपने जवाब दिया मस्जिद नबवी। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। 25 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा किया है हसन सेंटर पब्लिक स्कूल की टीम ने। बारी है दारुल मदीना वालों से कैटेगरी लेने की। अंबिया इकराम। अंबिया इकराम कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है, 15 पॉइंट्स का सवाल होगा। सवाल ये है, किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से उनके भाई को नबूवत मिली? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। 15 पॉइंट्स का ये सवाल था और सवाल ये था कि किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से उनके भाई को नबूवत मिली? जवाब दिया आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। आपका ये जवाब बिल्कुल गलत है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से उनके भाई को नबूवत मिली थी हजरत हारून अलैहिस्सलाम। याद रहे इस राउंड के आगाज में 70 पॉइंट्स का फर्क था दोनों टीमों के दरमियान, अब ये फर्क बहुत कम हो गया है। जी, गलती हुई है, 15 पॉइंट्स माइनस होंगे दारुल मदीना के स्कोर से। अल्लाहु अकबर। जी, सवाल होगा हसन सेंटर पब्लिक स्कूल, कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये पहला सवाल है, बताइए मस्जिद हराम में किस मुबारक पानी का कुआं मौजूद है? आबे ज़मज़म। आबे ज़मज़म। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। क्या शान है ज़मज़म शरीफ की भी। अल्लाह हमें भी मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में जाकर ज़मज़म पीना नसीब फरमाए। आमीन। जी, 10 पॉइंट्स का इजाफा किया है हसन सेंटर पब्लिक स्कूल। सुभान अल्लाह। बारी है दारुल मदीना वालों से सवाल करने की, कैटेगरी चूज कीजिए। मक्का शरीफ। मक्का शरीफ कैटेगरी का ये दूसरा सवाल है, 15 पॉइंट्स का ये सवाल होगा। बताइए मक्का शरीफ में जिस मुबारक मकाम पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसे क्या कहा जाता है? मोहल्लाए मसफला। मोहल्लाए मिसफला। मोहल्लाए मिसफला नहीं कहा जाता भाई उस जगह को। गलती हो गई है जनाब, सही जवाब है मौलिदुन नबी। गलती हो गई है दारुल मदीना से, 15 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। मुकाबला और क्लोज हुआ है और इंटरेस्टिंग हुआ है। हसन सेंटर पब्लिक स्कूल लास्ट सवाल के लिए, 5वें राउंड के आखिरी सवाल के लिए कैटेगरी चूज कीजिए। खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन कैटेगरी का ये पहला सवाल है, 10 पॉइंट्स का सवाल होगा। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का कितनी उम्र में इंतकाल हुआ? 63 इयर्स। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, बारी है दारुल मदीना वालों से राउंड 5 का आखिरी सवाल लेने की। मदीना। मदीना शरीफ कैटेगरी इंतखाब किया है जनाब। 30 पॉइंट्स का ये सवाल होगा। सवाल ये है, मदीना शरीफ का वो तारीखी कब्रिस्तान जिसमें सहाबा इकराम और अहले बैत के मज़ारात हैं उसका नाम क्या है? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाहु अकबर। मुकाबला बहुत जबरदस्त आगे बढ़ा है। मुकाबले में एक मर्तबा फिर दारुल मदीना वापस आया है। चौथे सवाल के बाद ये दोनों टीमें बराबर हो चुकी थी, फिर 10 पॉइंट्स का इजाफा किया हसन सेंटर पब्लिक स्कूल ने अपने स्कोर में और यूं 10 पॉइंट से आगे बढ़ गई हसन सेंटर पब्लिक स्कूल। लेकिन आखिरी सवाल के जवाब में फिर दारुल मदीना ने बड़ा फैसला लिया, बड़े नंबर्स गेन किए
और यूं अपने स्कोर में बड़ा इजाफा करवा कर 20 पॉइंट्स की लीड हासिल कर ली है। आइए आपको स्कोर बोर्ड दिखाते हैं। हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल का पिछला स्कोर 300 था, लेकिन बेहतरीन जबरदस्त इजाफा किया, 5वें राउंड में 75 पॉइंट हासिल किए और यूं आपका टोटल स्कोर हो गया 375 पॉइंट्स। दारुल मदीना की टीम 370 पॉइंट्स के साथ मौजूद थी, लेकिन 5वें राउंड में आपने हासिल किए हैं 25 पॉइंट्स और आपका टोटल स्कोर हो गया 395 पॉइंट्स। यूं मुकाबला बहुत क्लोज हो चुका है, सिर्फ 20 पॉइंट्स का फर्क रह गया है दोनों टीमों के दरमियान। और ये फर्क आखिरी राउंड में क्या होता है? आखिरी राउंड के लिए हमें चलना होगा अपने आखिरी राउंड की तरफ, जिसका नाम है आमना सामना। जी नाज़रीन, मुकाबला पहुंच चुका है अपने आखिरी राउंड में और आखिरी राउंड में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मरहला है। दोनों टीमें आमने सामने हैं, एक तरफ है दारुल मदीना की टीम, दूसरी तरफ है हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल की टीम। 20 पॉइंट से दारुल मदीना आगे हैं। ये फर्क किसी भी वक्त निकल सकता है, क्योंकि आखिरी राउंड में मेरे पास 15 सवालात हैं, यानी 150 पॉइंट्स हैं। हर सही जवाब देने पर हम आपके स्कोर में 10 पॉइंट्स का इजाफा करेंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। तरीकेकार क्या होगा आपको बता दूं। तरीकेकार ये होगा कि आप दोनों में से जो स्टूडेंट बजर पहले बजाएगा, जवाब हम उसी से लेंगे। सही जवाब देने वाले के स्कोर में इजाफा होगा और गलत जवाब देने वाले के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। दोनों सूरतों में, चाहे सवाल का जवाब आप दें या आप दें, सही दें या गलत दें, दोनों सूरतों में पहला स्टूडेंट लास्ट में चला जाएगा और दूसरा स्टूडेंट आगे आता जाएगा। हर सवाल के जवाब में ऐसा होता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं राउंड 6 का पहला सवाल। सलातुत तस्बीह की नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं? दारुल मदीना 4 रकातें। राइट आंसर। अल्लाह पाक के सिफाती नाम रहीम का माना बताइए। हसन सेंट्रल बहुत रहमत फरमाने वाला। बहुत रहमत फरमाने वाला। राइट आंसर। तरावी की नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं? दारुल मदीना 2। तरावी की नमाज में कितनी रकातें पढ़ी जाती हैं? आपने कहा 2। रॉन्ग आंसर, गलती हो गई है जनाब। 20 रकातें पढ़ी जाती हैं। भाई कंफ्यूज नहीं होना, इसी का नाम है ज़ेरो ज़बर होना। प्रेशर होता है, मुकाबले का प्रेशर भी होता है, कैमरों का प्रेशर भी होता है। चलें जनाब, मुसलमानों के पहले किबले का नाम बताइए। दारुल मदीना बैतुल मुकद्दस। बैतुल मक़दस। राइट आंसर। फतवा देने वाले को क्या कहते हैं? जी हसन सेंट्रल मुफ्ती। राइट आंसर। फर्क बहुत क्लोज रह गया है। 10 पॉइंट से हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल की टीम पीछे है, दारुल मदीना की टीम 10 पॉइंट से आगे है। ये मुकाबला किसी भी वक्त ज़ेरो ज़बर हो सकता है। कुरान पाक की एक सूरत सूरह कहफ है। कहफ का माना क्या है? दारुल मदीना पहाड़ी गार। पहाड़ी गार। जवाब दुरुस्त दे दिया है। राइट आंसर। शब कदर किस इस्लामी महीने में आती है? दारुल मदीना रमजान। राइट आंसर। कुरान पाक की कौन सी सूरत चूंटियों के नाम पर है? हसन सेंट्रल सूरह नहल। नहीं जनाब, गलती हुई है। सूरह नमल चूंटियों के नाम पर है। 10 पॉइंट्स माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी आसमानी किताब नाज़िल हुई? ज़बूर। आपने कहा ज़बूर। अगर यही सवाल का जवाब आपसे होता तो क्या देते? तौरेत कहते आप तौरेत कहते? आप सही कहते हैं, गलती हो गई आपसे। आपका जवाब दुरुस्त होता अगर ये सवाल के जवाब के लिए आप बजर बजा देते तो। चलें जनाब, दारुल मदीना वालों से गलती हुई है। 10 नंबर माइनस होंगे इनके। 30 नंबरों का सिर्फ फर्क रह गया है। ठीक है, निकल सकता है। अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं। बताइए जन्नत के दरवाजे कितने हैं? हसन सेंट्रल 8। इतनी जोर से आपने बजर बजाई, मुझे तो लगता था कि बस आप बजर ले जाएंगे साथ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। फर्क फिर क्लोज हुआ है। सिर्फ 20 पॉइंट्स का फर्क रह गया है। हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल 2 कदम पीछे है जनाब। मैयत पर पढ़ी जाने वाली नमाज को क्या कहते हैं? नमाज़ जनाजा। नमाज जनाजा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सिर्फ 10 नंबरों का फर्क रह गया है। दारुल मदीना की टीम 10 नंबरों से आगे है, हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल की टीम 10 नंबरों से पीछे है। अगर अगले सवाल का जवाब हसन सेंट्रल पब्लिक स्कूल की टीम की तरफ से दुरुस्त आया तो मुकाबला बराबर हो जाएगा, मुकाबला टाई हो जाएगा। कुरान पाक में बहुत सारी सूरतें हैं, मक्की सूरतें भी हैं, मदनी सूरतें भी हैं। आपने बताना यह है
کہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی مکی صورت کون سی ہے؟ حسن سینٹرل سورہ البقرہ. آپ نے کہا سورہ بقرہ. اگر یہی سوال آپ سے ہوتا تو آپ کیا جواب دیتے؟ سورہ کہف. اچھا ہوا آپ کے پاس تو یہ سوال نہیں آیا اور آپ کا جواب یہ غلط ہو گیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام بتائیے. دارالمدینہ ابو سفیان. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. رائٹ آنسر. قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی؟ سورہ توبہ. حسن سینٹرل. سورہ توبہ. رائٹ آنسر. آخری سوال, راؤنڈ 6 کا آخری سوال. جو قرآن پاک سے ایک حرف پڑھے تو اسے کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ دارالمدینہ 10. جو قرآن پاک سے ایک حرف پڑھتا ہے اللہ پاک اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. دونوں ٹیمیں آگے آئیں گی جناب. حسن سینٹرل پبلک اسکول نے کافی محنت کی, دارالمدینہ نے بھی زبردست سوالات کے جوابات دیے, لیکن یقیناً کوئی ایک ہی ٹیم زبر رہی اور ایک زیر ہو گئی. وہ کون سی ٹیم ہے آپ کو بتاتے ہیں. حسن سینٹرل پبلک اسکول والوں نے کافی محنت کی, کافی آگے آنے کی کوشش کی. ایک وقت میں ان کے پاس یہ چانس تھا کہ یہ مقابلہ آج اپنے نام کروا لیتے, لیکن ایک غلطی پھر انہیں پیچھے کرتی چلی گئی اور دارالمدینہ والوں نے بھی کئی چانسز دیے کہ یہ آگے نکل جائے. آئیے آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے ہیں کہ آخری راؤنڈ کا اسکور کیا رہا. حسن سینٹرل پبلک اسکول نے اس راؤنڈ میں آخری راؤنڈ میں حاصل کیے 30 پوائنٹس اور یوں حسن سینٹرل پبلک اسکول کا ٹوٹل اسکور رہا 405 پوائنٹس. دارالمدینہ کی ٹیم نے اس راؤنڈ میں آخری راؤنڈ میں حاصل کیے 40 پوائنٹس اور دارالمدینہ کا ٹوٹل اسکور رہا 435 پوائنٹس. یوں آج کا مقابلہ دارالمدینہ کی ٹیم جیت چکی ہے. یوں آج کے مقابلے کی ونر ٹیم دارالمدینہ رہی. اللہ کافی محنت کی تھی نا, ہو جاتا ہے یار, دل چھوٹا نہیں کرتے. کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے نا. آپ نے محنت تو کی. اب ماشاءاللہ. چلیں جی, اسی کا نام مقابلہ ہے, اسی کا نام زندگی ہے. کوئی ٹیم زبر ہوتی ہے تو کوئی زیر ہوتی ہے, کوئی پیچھے رہتا ہے تو ہی تو کوئی آگے نکلے گا نا. آج پیچھے رہے ہو, کل پھر آگے نکلو گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیں جی. خالی ہاتھ ہمارے بچوں کو رخصت نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ. خوبصورت سے تحائف ان کے ساتھ جائیں گے. دل چھوٹا نہ کیا کریں, یقیناً یہ مقابلہ ایک دلچسپی کے لیے ہے. ایک ٹیم نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. یہی مقابلے کا حسن ہوتا ہے کہ ایک ٹیم آگے بڑھتی ہے اور دوسری ٹیم پیچھے رہ جاتی ہے. لیکن آخری راؤنڈ تک پہنچنا, رنر اپ رہنا, یہ بھی کم کامیابی نہیں ہے, کیونکہ ان کی یہ سلیکشن ان کی اسکول میں آڈیشن کے بعد کی جاتی ہے. تو یقیناً اپنی اسکول سے بھی کامیابی حاصل کرنا, پھر یہاں پر بچوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے, اس میں سے بھی کامیابی حاصل کر کے آخری راؤنڈ تک پہنچنا, یہ بھی کم کامیابی نہیں. ماشاءاللہ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں, ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے, ہر مقابلے میں آپ کامیاب رہیں. اور یہی دعائیں ہماری ہر ٹیم کے لیے ہیں. ہماری پیچھے رہ جانے والی ٹیم کو بھی ہم خوبصورت سے تحائف دیا کرتے ہیں. جی تحائف دیجیے. یہ باکسز یاد رہے, ہم تحائف صرف پیچھے رہ جانے والی ٹیم کو دیا کرتے ہیں. اور یہ سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس کو. عبدالسلام بھائی, غلام مصطفیٰ, محمد عیان. چلیں جی, یہ تحائف آپ کے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائیوں کو پیش کیجئے. دیجئے ماشاءاللہ. چلیں جی, اس سے آپس میں محبت ہوتی ہے, تحفہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنے کے لیے. دارالمدینہ کی ٹیم نے سپر 6 راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا ہے. آپ کو کوالیفیکیشن سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. چلیں جی ماشاءاللہ. جی اس کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. 3 نئی ٹیمز ہوں گی, آپ ہوں گے, ہم ہوں گے, نئے سوالات ہوں گے. ہمارا یہ چینل ہوگا, دیکھتے رہیے, دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Zero zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar, zero zabar. Category wrong. Zero zabar, zero zabar, zero zabar. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया